So Garba is finally over. Let's go to the concepts we are going to study today. Okay, friends. So the article which I have circulated in your WhatsApp is about the capital structure planning. Over there, the Reliance Industries Limited took the advantage of optionally convertible preference shares. How they had leveraged this optionally convertible preference shares and how they took the advantages from it, how they did not pay the tax, and everything will be discussed in detail in some time to come. But before that, we should go to the practical questions of cost of debt. Let me give you the brief idea about what we had done in the last session. We were there into loans and borrowings, then debentures were discussed. The cost of debt formula chart was prepared by us, and that was the end of the session, right? So today we'll go through some practical questions of the cost of debt. Some of the questions will be given to you for practice, and then we will go to this case study of Reliance Jio. Is it clear? Okay, let's move to the first question, please, for the cost of debt. Everyone, please take a snap of it so that you won't have to refer it again and again. Online students as well, please take a snap of it. Okay, let's start reading this now. Mr. Abdul Ghani Baradar, the newly appointed Managing Director of Afghanistan Limited, decided to issue more debentures to 100 rupees for his highly leveraged company. अब यूएस से तो एड आना बंद हो गई है, तो लोन लेनी पड़ेगी. पब्लिक के पास गए ये भाई साहब कि बोले हमें डिबेंचर्स इश्यू करने हैं, पैसे दे दो कटोरा लेके, 1 के 56 हाथ में रख के. हाइट्स तो तब आ गई कि वो सामने वालों को पूछते हैं 1 के 56 लेके कि तुम यहाँ पे खुश हो कि नहीं हो. उसने गलती से भी बोल दिया कि मैं खुश नहीं हूं, तो उसकी क्या हालत होने वाली है मालूम है? मतलब वो तो अम्यूजमेंट पार्क में भी मजे कर रहे हैं जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं है उन लोगों ने. घूम रहे हैं, घोड़े पे बैठ रहे, इतने छोटे छोटे घोड़े थे, उसके ऊपर बैठ रहे थे. बोलो, तारे जमीन पर याद आ गई, खो न जाइए तारे जमीन पर. So he is the newly appointed MD of Afghanistan Limited. Every one of us will have to deal with him, unfortunately. 100 rupees of debenture will be issued by that company. Issued at the premium of 2%. Flotation cost is 5.35%. Interest rate is 9%. Tax rate is 38.5%. Maturity is of 9 years. So it's redeemable debentures, right? Maturity is given to us. Find the KD before tax and after tax redeemed at the premium of 5%. We know the formula of KD before tax and after tax. In the last session only we had discussed it. Go to the branch of debentures, in that redeemable debentures, and in that before tax and after tax formula will be applied. Let's write the before tax formula now. KD before tax equals to I plus MV minus SV divided by N. Remember that in the back of your mind. The whole is divided by the average of MVSV. मल्टीप्लाई बाय 100 अभी करने की जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे. कब करेंगे? बाद में करेंगे. I stands for the interest per debenture in amount. Let's put everything over there in the formula. कितना है भैया इंटरेस्ट बता दीजिए? 9%. Interest is always paid on the face value. Please put this in the back of your mind. So on 100 rupees of face value, 9% of interest will be how much? 9 rupee, right? Plus MV and SV we do not have. Let's prepare the working notes for that. Working note number 1. Let's consider first SV.
That starts with FV equals to 100. If the debentures are issued at premium, it should be added. If they are issued at discount, it should be reduced. तो भैया ये इश्यू है वो प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे है? प्रीमियम पे है. कितना परसेंटेज प्रीमियम पे करना है इश्यू के समय पे? 2%. 2% will always be of the future, sorry, face value. FV में फ्यूचर वैल्यू याद आता है, बोलो. तो 2 रुपए पे कर दिया, तो ये हो गया हमारा इश्यू प्राइस 102. हमारी अधूरी कहानी. फ्लोटेशन कॉस्ट इज टू बी इनकर्ड, राइट? You will be appointing various agencies, brokerage, commission to the various people needs to be given. That is regarded as the flotation cost minus flotation cost. Circulation cost can also be the new name for the flotation cost. Flotation cost is how much? 5.35%. Now flotation cost will be of what? Issue price or the face value? It should be taken off the issue price if nothing has been stated. If explicitly they have told us to calculate this on the face value, we will take it on the face value. If nothing is stated, we take it on the issue price. Generally जो flotation cost के डिटेल्स आते हैं वो उनकी इश्यू प्राइस के ऊपर आते हैं कि 105 रुपए का शेयर है, तुम 200 रुपए का शेयर इश्यू करते हो इंक्लूडिंग द प्रीमियम, तो हम कहते हैं 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है. तो 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट उसके फेस वैल्यू पे नहीं होता, जो प्राइस से हमने इश्यू किया है शेयर जनरली उसी के ऊपर होता है. तो फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी ऑफ द इश्यू प्राइस. हाउ मच? 5.35% of 102. What do we get? Can someone tell me please? सर. Yes please. ये 102 कैसा है, नहीं समझ आया. Premium of 2 rupees is added, no friend? Issued at the premium of 2%. Third line of the question. Is it clear? Okay, yes. How much we get? 5. Laptop is high on charger. Let me try. Started working. 5.46. 4 डिजिट तक लो ना बेटा, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. 457. Okay, let's reduce this. So we get sell value 90,543, right? Okay, that's working note number 1 for the SV. Working note number 2 will be for MV. Now it is of the redemption, right? MV stands for the maturity value. जब रिडीम करेंगे उस समय की कहानी बतानी है. तो भैया फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए. रिडीम करेंगे उस समय पे डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हैं कि प्रीमियम के रिडीम कर रहे हैं? Redeemed at the premium of 5%. Last line, right? So premium will always be added. 5% of 100 will be 5. That's why maturity value will always be 105. Now it's possible that you may issue it at the discount and redeem it at the premium. It's possible that you may issue it at the premium and redeem it at discount. Both the details may be separately given to you. Maturity value we have got 105. Now so it's halwa. What is it? Halwa.
Let's put everything there in the formula, friend. MV 105 minus 96.953 sorry, divided by n will be 9 years. Number of years in maturity, 9 years given to us. 96 नहीं है सर, 95 है. ओके, क्लियर है? चलो अब क्लियर है. Divided by 9. Remember that in the back of your mind. The whole is divided by the average of MVSV. चलो भैया 9, ये जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ना उसको पहले क्लोज कर देते हैं. डिवाइडेड बाय 9 का फाइनल आंसर बता दीजिए. 9 4 डिजिट 97. Now to maintain the uniformity in the answers, we will adopt the standard practice of 4 decimal places in every calculations anywhere in any sort of concepts of finance. Is it clear? Good. To be divided by the average of these two, what do we get? Good. So let's just edit up the numerator. 9.9397 divided by 100.7715. So what do we get? Can someone tell me, please? 0.0986, which turns out to be 9.86%. If you multiply that with 100, is it clear? लेकिन अभी भी हमारी अधूरी कहानी. आफ्टर टैक्स भी है ना भैया, ऐसा क्वेश्चन खत्म होने वाला है नहीं. चलो अब आफ्टर टैक्स की फॉर्मूला बताइए. एक ही चेंज आएगा. कौन बताएगा? कौन है हमारा क्लास की मणिकर्णिका बाजीराव सिंघम जो बताएगा कि क्या चेंज आएगा? 1 माइनस टैक्स रेट किधर लगेगा? आई के बाजू में. आई के मल्टीप्लीकेशन में चल के डी आफ्टर टैक्स लिखना शुरू कर दे बेटो. I in bracket 1 minus tax rate, I in bracket 1 minus tax rate plus MV minus SV divided by N. Remember that in the back of your mind. The whole is, अरे भैया the whole is divided by the average of MVSV. I stands for the interest per debenture. Every calculations are already done. Only the tax calculation will take place. कोई एडाज एंड एडिस फिर से फाइंड करना शुरू करेंगे भैया. हो चुका है प्रीवियस में से, सीधा कॉपी कीजिए. 9 रुपए. टैक्स रेट कितना परसेंटेज है? 38.5. कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक 0.385 in decimal, right? Plus, sir, the maturity value is going to be 105 minus 96 point. सीधू लखी नाखू 96.543 to be divided by 9. Rest everything will remain same as it is. 105 plus 96.543 to be divided by 2. Divided by 2. 9.2 बोलने में बहुत मजा आता है लोगों को. इधर 9.9397 नहीं भैया, 9.9397 कैसे आएगा? बाजू वाला चेंज हो जाएगा. बताइए. नाइन को मल्टीप्लाई करिए 61.5 से 0.615.
कितना आता है विधि? 5.53 plus 0.9397 to be divided by 100.7715. Let's find the final answer now. 0643. Sir, it can also be written like 6.43%. That's gonna be the cost of that after tax. Effectively, after taking the benefit of the taxation, my friends, this is what the cost the company is going to incur. चलो हुई गवाह। सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ है भैया, जरा सा कंफर्मेशन दे दीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर हैरी, मिस्टर तुषार, हम साथ साथ है, वेरी नाइस। आप हमारे साथ क्यों हैं? हम आपके हैं कौन? आई इन ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट। ये गीत है ना, गीत का हमने एंड नहीं किया था, ठीक है? तो ओह से याद आया, इसका एंड कर देते हैं। नी सा रे गा रे सा रे गा रे सा रे, नी सा रे गा रे सा रे गा रे सा सा। आगे बढ़ते हैं भैया। अच्छा, नाउ लेट्स गो टू दैट आर्टिकल आई हैड पोस्टेड। बीच बीच में जो हाईलाइटेड बोल्ड पोर्शन है सिर्फ वही पढ़िए। मुझे मालूम है बहुत टेक्निकल लैंग्वेज है, टैक्स, ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, सर ये सब क्या है? आप हमें इतना कहाँ मालूम पड़ता है, आप टैक्स की बड़ी बड़ी बातें करते हो इधर। तो इसीलिए तो बेटा मैं यहाँ हूँ आपको सिखाने के लिए, तो वरना हो जाता तो आप नहीं होते, बाहर जाके सीख लेते। कुछ कुछ सब्जेक्ट में तो जो हमें मालूम होता है वही लर्न करना होता है, लेकिन ऐसा ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, इसमें हमें कुछ भी मालूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया। टीसीएस और रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसे कंपटीशन में रहते हैं, कभी ये उसको टेक ओवर कर लेती है, कभी वो उसको टेक ओवर कर लेती है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, इसकी एक जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है रिलायंस जियो। क्या नाम है? रिलायंस जियो। कंपनी इज द सेपरेट आइडेंटिकल लीगल पर्सन। इट कैन enter into a contract on its own name. It can purchase the shares of another company on its own name. तो रिलायंस जियो का मालिक कौन है, माई बाप कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। अब ये वाली जो अरेंजमेंट नहीं करते जो हमें आर्टिकल में दी हुई है, तो फिर कैसा होता? तो फिर कैसा होता? ये होती हमारी आम जिंदगी। रिलायंस के पास शेयर्स है रिलायंस जियो के, तभी तो वो उसकी मालिक हुई। अब रिलायंस जियो को एक्सपांड करना था, कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेनी थी, 5G स्पेक्ट्रम लाना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करनी थी, कम दाम में स्मार्टफोन्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने थे, लोगों को देने थे। बहुत उनके एम्बिशियस प्लान्स थे। अब इतने ज़्यादा एम्बिशियस प्लान्स आप दूसरों की मदद लिए बिना नहीं कर सकते। आपको हाईली एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए फॉरेन प्लेयर्स की, लाइक फेसबुक, लाइक गूगल। लेकिन फेसबुक और गूगल ऐसे सेवा करने के लिए तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे? हमें शेयर होल्डिंग दो। क्या कहेंगे? शेयर होल्डिंग दो। भैया रिलायंस जियो के अंदर हमारा भी कुछ भाग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अभी अगर भाग देना होता तो ये भाग है किसके पास? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास। तो बेसिकली रिलायंस को हम उसके शेयर्स किसको ट्रांसफर करने पड़ते हैं? रिलायंस जियो को नहीं, एफबी को और गूगल को। किसके शेयर्स? रिलायंस जियो के शेयर्स। रिलायंस जियो का शेयर्स कौन ओन करता है? रिलायंस ओन करती है। रिलायंस ट्रांसफर करेगी एफबी और गूगल को। अब एफबी और गूगल को तो बहुत वैल्यूएशन से वो ट्रांसफर करती है, 1500 रुपये 1600 रुपये पर शेयर के वैल्यूएशन पे। व्हेन द कोरोना वाज एट द पीक, इट वाज वेरी ब्रेव एंड एम्बिशियस मूव, हाँ, करेजियस मूव। जब कोरोना पीक पे था, मार्केट सब टूट रहे थे, बाकी सब एकदम खत्म होने पे थे, उस समय पे ये भाई साहब हायर वैल्यूएशन पे स्टेक को सेल करते हैं। देखो इनका पावर, देखो आप। बाकी जब
आईपीओज इश्यू होते हैं तब कौन से समय पे होते हैं, जब मार्केट इन्फ्लेटेड होते हैं, उस समय पे उनको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगा। वैसे ही मेजर टेक ओवर एंड परचेज डील्स भी उसी समय पे होती है जब मार्केट थोड़े से इन्फ्लेटेड होते हैं, अच्छे वाले सिचुएशन में होते हैं। ये तो मार्केट जब टूटा उस समय पे डील करते हैं, बोलो अपने शेयर्स को सेल करने की। गजब पावर है भैया, गजब पावर। मार्केट की गजब बेइज्जती करते हैं मुकेश भाई साहब। क्या करते हैं? गजब बेइज्जती करते हैं। अच्छा, अब ये जो 1500 रुपए के शेयर वो सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे? एफबी को, गूगल को। हाई ऑन वीड उतर नहीं रही है, मतलब वीड होगी, मुझे नहीं मालूम है सुना है ऐसा मैंने हर जगह पे ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होता कि कोई कोई चीज आपने पढ़ी भी होती है ना। हम कुछ भी चीज बताए, हाँ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ऐसा लोग बोलते हैं, बोलो हमने पढ़ी है भैया वो अच्छा, हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। क्या है ऑल्टरनेटिव? अच्छा, ये शेयर्स अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो के ट्रांसफर करती 1500 रुपए में, व्हेन दे हैड इन्वेस्टेड इनटू Reliance Jio, say the cost was somewhat near to 200, 300, then the per share profit, how much they are making? 1,200, and this deal was in the billions of crores, right? Now, if this was in too much of thousands of crores, you can imagine the amount of taxation to be paid by the Reliance, because this 1,200 rupees is the profit they have made on the transfer of shares. The transfer of share is considered to be the transfer of capital asset as per the Income Tax Act 1961. You are supposed to pay either the short-term capital gains or the long-term capital gains on this transfer. लेकिन ये होती आम जिंदगी। कौन सी आम जिंदगी? मुकेश भाई साहब कौन सी जिंदगी जीते हैं? मेंटोस जिंदगी। उनको मालूम था कि हमें स्टेक को सेल करना है, उन्होंने पहले से प्लान करके रखा भैया। रिलायंस जियो के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर्स नहीं थे, उसके अंदर ऑप्शनली कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स भी थे। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसका कंपनी है जियो, ये जियो के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर्स नहीं थे, उसके साथ साथ थे ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का जो कैपिटल था ना, दैट वाज समवॉट नियर टू 30,000 करोड़, एंड ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वाज समवॉट नियर टू 1,70,000 करोड़। So the money which Reliance Industries Limited infused into Jio was through the optionally convertible preference shares in amount of somewhat near to 1,70,000 crores. तो जियो ने क्या शाणपत्ती की मालूम है? जियो ने जो शेयर्स इश्यू करने थे गूगल को और एफबी को, वो शेयर्स फ्रेश शेयर्स इश्यू किए। कौन से वाले? फ्रेश शेयर्स। अब आप फ्रेश शेयर्स इश्यू करते हो, दैट इज नॉट द ट्रांसफर। एक पार्टी से दूसरे के पार्टी के पास नहीं गए, ये तो नए वाले शेयर्स ही आप लेके आए। अब नए वाले शेयर्स लेके आए तो आपके पास तो बहुत ज्यादा डेट पड़ी हुई है, मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा पैसे देने हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जितना भी स्टेक उनके पास आया ना इन टर्म्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स, उसमें से सबसे पहले किसको चुकता किया उन्होंने? ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उनको कह दिया आप हो गए रिडीम, टाटा बाय बाय सी यू, अब हमें आपकी कोई जरूरत अब नहीं है। ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिए। ये पैसे कहां से निकाले? नए वाले फ्रेश इक्विटी शेयर्स इश्यू किए। किसको किए? गूगल और एफबी को। अब रिलायंस डायरेक्टली सीधा स्टेक को सेल करता गूगल को तो फिर वो हो जाती आम जिंदगी, लेकिन रिलायंस ने ऐसा नहीं किया। रिलायंस ने अपना शेयर होल्डिंग कुछ भी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं किया। रिलायंस जियो को बोला कि भाई तू नए वाले इक्विटी शेयर्स किसको इश्यू कर दे? जियो को, गूगल को इश्यू कर दे, और उसमें से जो पैसा आया ना, उस पैसे से हमारे जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर पड़े हुए हैं उसके पैसे हमें वापस दे दे। एक भी रुपये का टैक्स पे नहीं किया। ये है मुकेश भाई साहब। सर ये आप कवर क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब आया ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स।
We are right now jumping to the preference shares. People are using the preference shares for the tax benefit advantage. This is the classic case study how the companies are taking the advantage of preference shares to save the tax liability. Let's go to the preference shares now. Shall I? चलो जाते हैं भैया, पीपीटी में जाते हैं. ये हमारी पीपीटी आ गई. चलो भैया प्रेफरेंस शेयर्स में जाते हैं. नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. वी विल डिस्कस द फॉर्मूलाज ऑफ दैट टू. नाउ इट इज ऑफन रिगार्डेड एज द हाइब्रिड सोर्स ऑफ फाइनेंस. व्हिच सोर्स ऑफ फाइनेंस? हाइब्रिड. दोनों को मिला दो तो फिर हाइब्रिड हो जाता है. सर कौन से दोनों को मिलाए? एक तो डिबेंचर्स को मिलाया और दूसरा इक्विटी को मिलाया. That means some of the features of the equity will be shared by the preference shares and some of the features of the debentures will be shared by preference shares. Sir, how? The first feature which is resembling with the equity is the dividend payable only out of profits. Profits है तो dividend मिलेंगे, otherwise कुछ भी dividend नहीं मिलेगा. अरे profits है ना तो भी हम dividend pay नहीं करेंगे भैया. नहीं करना है तो नहीं करना है. It is not an obligation for the company to make the payment to the equity shareholders or to the preference shareholders. लेकिन ये जो preference shareholders है ना, वो जल कुकड़ी बहन की तरह है. कैसे है? वो स्टोरी याद आ रही है जल कुकड़ी बहन वाली? नहीं? एक बार है ना, मैं टीवी देख रहा था तो मेरी बहन आई, उसने मेरे हाथ से रिमोट कंट्रोल छीन लिया. उसको वो एकता कपूर वाले धूम ताना वाले ड्रामे देखने थे. तो हम दोनों झगड़ रहे थे. मैं बोला मेरे पास रिमोट रहेगा, वो बोली मेरे पास रिमोट रहेगा. अब पापा को बहुत इरिटेशन होने लगा. वो आए, किसी को सोने नहीं दे रहे हो तुम लोग, कितना हंगामा मचा के रखा है. उन्होंने आके टीवी को बंद कर दिया. रिमोट कंट्रोल हमारे दोनों के पास से चला गया. अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जलकुकड़ी बहन को. मैं बोला उससे अच्छा मैं देखता तो तेरे कुछ प्रॉब्लम थी, अब बंद हो गया, क्या करेगी बता. तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर मैंने भूल से टीवी चालू किया तो फिर रिमोट किसके पास होना चाहिए? उसके पास होना चाहिए. बोलो, मतलब तुम टीवी बंद कर दो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीवी चालू किया तो फिर रिमोट किसके पास होना चाहिए? उसके पास होना चाहिए. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वैसे ही है. तुम उसको डिविडेंड पे ना करो ना तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर इक्विटी को पे किया तो पहले किसकी बारी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बारी है कि नहीं? जल कुकड़े नाम ही है उनका प्रेफरेंस. बोलो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट ऑब्लिगेटरी. It is not an obligation for company to make the compulsory mandatory payout of the dividend to the preference shareholders. In terms of the in case of the insufficient profits too, they may comfortably say no to the preference shareholders for not making the payment of dividend. Preference dividend is not a tax deductible expense. The luxury of the tax deduction is available only to the interest. इंटरेस्ट में ही टैक्स का बेनिफिट मिलता है. डिविडेंड को कभी भी भैया हम एक्सपेंस चार्ज नहीं कर सकते. इट इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेसिडुअल प्रॉफिट्स टू द शेयर होल्डर्स. इसको हम एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते. तो कुछ फीचर्स इक्विटी के हुए कि नहीं हुए, लेकिन कुछ फीचर्स है वो डेट के होंगे. पहला, डिविडेंड रेट इज फिक्स्ड. 8%, 9% डिविडेंड मिलेगा भैया आपको 100 रुपए के फेस वैल्यू के ऊपर. तो ये तो डेट वाली बात हो गई ना. आपका लायबिलिटी फिक्स है. डिविडेंड अगर पे करना है तो इतना ही परसेंटेज पे करना है भैया. समझ में आने वाली बात है. क्लेम इज प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड दैट इज in the case of dividends too and in the case of the liquidations of the company too. When the company will be shutting down, the money you receive from the assets and all sorts of, the investments you have created, the first it will be distributed to outsiders liability, and in that too the secured liabilities who have created either the charge or security on your assets. Then it will be paid to the outsiders liabilities which are unsecured. Then if something will be left, will be paid to the preference shareholders, and now if something will be left, will be distributed to the equity shareholders. लेकिन equity shareholders से पहले किसको कवर किया जाएगा?
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। भैया दे डू नॉट हैव द वोटिंग राइट्स, मतलब कि वो कंपनी के कंट्रोल को डाइल्यूट होने की बात गई। वोटिंग राइट्स नहीं मतलब कंट्रोल भी नहीं। वोटिंग राइट्स इज द एक्सक्लूसिव बेनिफिट गिवन टू ओनली टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। रिजोल्यूशंस पास होंगे, उसमें वोटिंग करना पड़ेगा, ये कर दो, वो कर दो, ये डायरेक्टर को चेंज कर दो, वो वाले ऑडिटर को ला दो, इक्विटी शेयर इश्यू करो ना करो, इधर एक्सपांड करो, वो एक्सपांड करो। ये सब डिसीजंस जब लेंगे तब रिजोल्यूशंस पास करने पड़ेंगे एनुअल जनरल मीटिंग में। उस समय पे ये भाई साहब वोट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक डिबेंचर होल्डर्स। इज इट क्लियर? So these are some of the features of equity and debentures shared by preference shares. That's why they are regarded as the hybrid source of finance. Earlier, there was a practice of issuing the irredeemable preference shares, but now that has been discontinued by the Companies Act 2013. The maximum maturity life should be of 20 years, in which the company is compulsorily, mandatorily liable to redeem the preference shares. Either it should be converted to equity shares or to some other form of a security, or it should be redeemed. लेकिन 20 साल उनके लाइफ मैक्सिमम है। समझ में आने वाली बात है? ये मॉडिफिकेशन अभी आया कुछ साल पहले। पहले इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू हुआ करते थे। There are various types of the preference shares: convertible, non-convertible, convertible into equity, or some of the preference shares will never be converted into equity at the time of redemption. In convertible too, there may be further types: optionally convertible and mandatorily convertible. तो भैया उसके पास ऑप्शन होगा, अगर मुझे कन्वर्ट करना है ना तो ही, हाँ, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते कन्वर्ट करने के लिए, तो उसे कहते हैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, after making payment to the equity share preference shareholders in terms of dividend, now rest of the money is left, no? In that, if further participation is to be done, given to the preference shareholders, तो उसे कहते हैं participating preference shares। मतलब कि भैया एक तो डिविडेंड मिल गया, उसके बाद में वापस वो कटोरा लेके भीख मांगने आएंगे कि अभी भी जो प्रॉफिट्स है ना उसमें से फिर से हमें डिस्ट्रीब्यूट करो इक्विटी के साथ। तो ये तो नाइंसाफी हुई कि नहीं हुई? लेकिन फिर भी कोई को पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हैं। पहले तो आप अपना फिक्स डिविडेंड ले लो, उसके बाद में जब इक्विटी को मिलेगा फिर से तुम्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा। सम में भी नॉन पार्टिसिपेटिंग, सम में भी क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव टू। क्यूमुलेटिव माने कि जिनका पैसा अक्यूमुलेट होता जाता है। 1, 2 साल, 4 साल के लिए अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कोई भी मार्केटिंग कैंपेन उनके काम नहीं आ रही है, सेल्स जनरेट नहीं हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल भी कम है, कैश लिक्विडिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो अगर पे नहीं करेगी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो वो वाले पैसे वो मना कर सकते हैं, अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन फ्यूचर में जब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद तुम्हारी यथाशक्ति हो जाएगी, उस समय पे तुम्हें अगर पे करना हो तो पिछले जितने भी अर्नियर्स है उसके साथ में पे करना पड़ेगा। दैट विल बी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर वो वाला राइट नहीं है, रात गई बात गई, ये साल गया मतलब कि अब सीधा नेक्स्ट साल, ऐसी अगर बात है तो वो वाले कौन से हो गए? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत ज़्यादा और भी इसके अंदर आप टाइप और वेराइटीज़ कर सकते हो। कुछ फीचर्स आप डिबेंचर्स के उठाओ, कुछ फीचर्स इक्विटी के उठाओ, उसका हाइब्रिड कुछ तैयार करो, लोगों को इश्यू करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? Now you might have heard that the voting right may be given to preference shareholders in some occasions. Now that depends upon the articles of association, how the companies have framed their rules. Generally, overwhelming majority of the companies opts not to give the voting rights to preference shareholders. And if it is silent, that means the voting right is not given to preference shareholders. Clear? Thank you so much. So यहाँ तक किसी को कोई डाउट वगैरह है तो
बट आप बता सकते हैं, otherwise I am assuming that you are getting everything. May I have a confirmation from online students, please? Thank you so much, Mr. Harry, Mr. Meg, Mr. Tushar. Yes, Mr. Meg, please. You have a doubt? Sir, you said about that Reliance, Jio issued some fresh shares instead of like issuing that optionally convertible preference shares. So, like, Right. what is the taxation rate on issuing that optionally convertible preference shares rather than issuing equity shares? See, while issuing anything, you don't have to pay any tax because it is not regarded as the transfer. Company is just raising the money from its shareholders and investors, right? It is never considered as the transfer of asset. But if the Reliance Industries Limited would have sold some stake to the Google and FB in Jio, then it would have been considered as the transfer of asset, and transfer of asset is liable to capital gains tax, either short term or long term. Issuing in the fresh issue of any sort of a capital can never be regarded as the transfer, my friend. That's why it is not liable to any sort of taxation. Is it clear, Mr. Meg? Yes, sir. Any other doubt? No, sir. Okay, thank you so much. Please put your enrollment number as a mark of your attendance. That's it from my side for the day. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Sayonara.